Good morning, everyone. Welcome back after the summer vacations. We already have done in our previous classes the chapter 3 and just the basic idea about chapter 4, wherein we did talk about how to find the determinant of a 2 by 2 and 3 by 3 matrix. Also, we learned certain properties of determinants. In fact, there were 6 main properties which we did talk about. And using those properties of determinants, we considered and solved NCERT exercise 4.2. So I would recommend and suggest all of you to once again quickly go through that. So properties quickly, next 5 minutes, I'll be talking about the value of a determinant remains same if the rows and columns are interchanged. So even if I take the transpose, the determinant remains the same. So look at the following examples. So if I interchange their rows and columns, a new determinant delta 1 is formed like this. But if I calculate their values, they will be the same. If two rows or columns of a determinant are interchanged, the value of determinant changes by its sign. Consider the following example. मैंने इंटरचेंज कर दिया रो 2 एंड रो 3 को और इंटरचेंज की ये नोटेशन रही थी. तो रो 2 और रो 3 इंटरचेंज कर दीजिए आप. तो चेक दैट इन दोनों को इंटरचेंज करा है. So the sign of your determinant, the value will be changed. If in a determinant two rows or columns are identical, the value of determinant is 0. One of the simple example, R1 and R3 same है यहाँ, therefore the value is determinant of this is 0. If in a determinant the elements of any row or column are multiplied by some scalar k, the value of new determinant becomes k times the given determinant. Say this is some general determinant given. रो 1 को हमने से k से मल्टीप्लाई कर दिया है. So the answer will become k times the determinant delta. If in a determinant the elements of any row or column is made up of sum of two or more quantities, then the determinant can be expressed as a sum of two or more determinants of the same order. So the example is pretty obvious. आपके सामने है. We already have discussed. यहाँ first row को ऐसे split करके दिखाया है. The same may be done and possible for any row or column. And the most important property, if each element of a row or a column is multiplied by a scalar and added to the corresponding elements of any other row or column, then the value of determinant is unaltered. And this property helps us to introduce as many as number of zeros, जिसकी वजह से डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना आसान हो जाता है. तो चेक करिए, जैसे मान लो डेल्टा आपके पास ये गिवन है. When I apply this operation, R1 goes to, हम इसको रीड आउट ऐसे करेंगे, R1 goes to R1 प्लस से K टाइम्स R3 कर दिया. तो पहले बात, ये नया डिटर्मिनेंट बनेगा. And when we simplify this, the values would be the same.
Any doubts to anyone up to this step? I will not now consider exercise 4.2 that has been already done before the vacations. बट अब जो कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस या सिमिलर भी हम कहें रह गए हैं, आई विल स्टार्ट विद दोज क्वेश्चंस यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स. तो चेक दिस आउट. फर्स्ट क्वेश्चन, using properties you are to show this. Always remember I did mention about so called golden rule. और golden rule क्या है properties में? First step, look for any element if that is common in any row or column. अगर कुछ भी कॉमन है तो पहला स्टेप तो वही बाहर निकाल दो, कॉमन. अगर कॉमन नहीं है then look for 1 1 1 in any row or any column. अगर 1 1 1 है तो आप प्रॉपर्टीज की हेल्प से दो जो 1 1 है उन्हें 0 0 कन्वर्ट कर सकते हैं. इफ देयर इज नो 1 1 1 तब आप यूज करो, और RHS जो आपको आंसर लाना है उसके फैक्टर्स आर गोइंग टू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. तो कीप दैट इन योर माइंड सिंस बिगिनिंग. और अगर 1 1 1 नहीं है, इन दैट केस start applying the rule से R1 goes to R1 plus R2 plus R3, or C1 goes to C1 plus C2 plus C3, or R1 goes to R1 plus R2, या R1 goes to R1 minus R2. So such type of operations वो हम डिसाइड करते हैं अपने आंसर को कि वो क्या लाना है, उन फैक्टर्स को देखकर जनरली डिसाइड होता है. यू विल फाइंड 95% ऑफ द क्वेश्चंस इस कैटेगरीज में फॉल कर जाएंगे. बट अगर इनमें से भी कोई रूल नहीं लगता है, देन वी लेफ्ट विद वन another very important possibility: divide and multiply by x, y, z or ABC, depends on the given question. रोज को A, B and C से मल्टीप्लाई कर दिया, और आफ्टर दैट यू विल फाइंड कि कॉलम्स में से ABC कॉमन आकर बाहर आ जाएगा. सो विल कंसीडर दैट सेपरेटली जब ऐसा क्वेश्चन आएगा. एनीवे, अब हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को. सो सिंपल ऑब्जर्वेशन हमारा क्या रहा? वी हैव 1 1 1 प्रेजेंट ओवर हियर. तो इसीलिए क्या मैं अप्लाई करने वाला हूं, LHS को कंसीडर किया, ये आप लिख लेना यहाँ पर. और इसमें आपने यूज कर दिया, चलो मैं लिख देता हूँ. LHS है 1 1 1 और ये ABC. दो जनरली हम रो पहले लिखते हैं. ये आ गया B स्क्वायर प्लस CA एंड C स्क्वायर प्लस AB. आंसर फिर मैंने माइंड में रखा हुआ है एज दीज फैक्टर्स. सो 1 1 1 की प्रेजेंस मुझे दिख गया, तो हम क्या करेंगे? R1 goes to R1 minus R2, R2 goes to R2 minus R3. अप्लाई दिस ऑपरेशन. तो R1 में R1 माइनस R2. सो चेक दिस आउट. R1 मेरा ये है और ये मेरा R2 है. तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आप सबट्रैक्ट कर दीजिए. तो दिस इज 0, दिस इज A माइनस B, और यहाँ आएगा A स्क्वायर प्लस BC माइनस B स्क्वायर माइनस CA हो जाएगा. सिमिलरली सेकेंड ऑपरेशन, R2 goes to R2 minus R3 would give us 0, B minus C, B square plus CA minus C square minus AB. And remember, at the same time in one go हम दो ही ऑपरेशन साइमल्टेनियसली लगा सकते हैं. तो ये आ गया.
फैक्टराइज करना, सोचिए कहीं ना कहीं बिल्कुल कॉमन फैक्टर या कुछ सॉल्व हो रहा होगा। तो अगर आप इस टर्म को ध्यान से देखें तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मैंने कंबाइन कर दिया। आप चाहो तो इसे रफ में अलग से सोच सकते हो और डायरेक्ट लिख देंगे कि ये क्या सॉल्व होके आ रहा है। अननेसेसरी हम स्टेप्स को फिर इतना बढ़ाएं, दैट इज नॉट एडवाइजेबल। और यहाँ चलो आ गया था सी ए माइनस ए बी, एंड यहाँ वन सी सी स्क्वायर प्लस ए बी एज इट इज। सो दिस इज जीरो ए माइनस बी। इसे जब फैक्टराइज करा ये आ गया ए माइनस बी ए प्लस बी, और इन दोनों में से कॉमन दिख रहा है सी, बट सी की जगह आई वुड प्रेफर माइनस सी। रीजन, माइनस सी कॉमन लेते ही यहां आ जाएगा ए माइनस बी। जीरो बी माइनस सी, और इसे फैक्टराइज करा बी माइनस सी बी प्लस सी, एंड ऑफ कोर्स अब इनमें से कॉमन में लेने वाला हूं माइनस ए, सो दैट इट वुड गिव मी इन ब्रैकेट बी माइनस सी। Copy the third row as it is. So 0 a minus b, and a minus b यहां से कॉमन और ब्रैकेट में a प्लस बी माइनस सी। 0 b माइनस सी, b माइनस सी कॉमन, ये कॉमन, और ब्रैकेट में b प्लस सी माइनस a, ये एज इट इज। अब क्या करेंगे, रो वन में से क्लियरली a माइनस बी इज कॉमन, एंड रो टू में से b माइनस सी इज कॉमन, क्योंकि जीरो में से तो आप कुछ भी कॉमन निकाल सकते हैं, याद रखिए। तो इसका मतलब a माइनस बी एंड b माइनस सी जब ये कॉमन आ गए यहाँ, ये फिर b प्लस सी माइनस ए, एंड कॉपी दिस। फिर इसके बाद क्या ऑब्जर्व मैंने किया, यहां पर जब ये वन वन आ गए हैं, आप एक बार फिर से ऑपरेशन लगा, आप एक्सपैंड भी कर सकते हो। इस स्टेप के बाद यू कैन ऑलवेज एक्सपैंड, अगर आपके पास 0 0 1 आ जाता है तो वन मोर ऑपरेशन वो क्या लगा सकते थे। चलो R1 गोज टू R1 माइनस R2, ये ऑप्शनल है, नहीं तो आप एक्सपैंड कर दीजिए और आप चेक करेंगे आंसर आ चुका है। बस इसके बाद अगर मैंने ये माइनस कर दिया R1 माइनस R2, तो दिस माइनस दिस जीरो, और इसमें से ये माइनस करा क्या, a प्लस बी माइनस सी में से नेक्स्ट टर्म माइनस कर दिया। सो व्हाट विल हैपन, b से b कैंसल हो गया, सो 2a माइनस 2c, सो 2 टाइम्स a माइनस सी आ जाएगा, बाकी एज इट इज। एंड आई एम श्योर अब आपको पता है इसके बाद हम क्या करेंगे। फर्स्ट कॉल रो में से 2 टाइम्स a माइनस सी कॉमन, एंड देन एक्सपेंड दिस, एक जगह से -1 आएगा, सो दैट वो बन जाएगा आंसर वाला c माइनस ए। तो कंप्लीट द लास्ट 2 स्टेप्स इन योर होमवर्क। तो एक बेसिक आइडिया मैंने, एक स्ट्रक्चर, एक फ्लो बता दिया है। इस तरह के क्वेश्चंस वी ऑलरेडी हैव डन। Any doubt to anyone?
चलिए प्लीज नोट द फॉलोइंग क्वेश्चन एंड ट्राई इट आउट। स्टार्टिंग स्टेप सोचिए कैसे होगा। लुकिंग एट 111 और आंसर थोड़ा फिर माइंड में रखिए कि a-1 एज अ फैक्टर आ रहा है। तो आपको जब 111 दिख गए, रो 1 गोज टू रो 1 माइनस रो 2। यस, ठीक है भानु। एंड रो 2 गोज टू रो 2 माइनस रो 3। प्लीज अप्लाई दिस, आई एम वेटिंग। करके देखिए पहले एक दो स्टेप्स। हाँ, यही सेकेंड ऑपरेशन R2 गोज टू R2 माइनस R3। तो डायरेक्टली अब हमने LHS कंसिडर किया था। R1 गोज टू R1 माइनस R2, R2 गोज टू R2 माइनस R3 किया। सो ए स्क्वायर, और ये जब माइनस करा, सिंपली चेक कर लो, ये आ जाएगा। इधर क्या आ रहा है, a-1 एंड 0। फिर इसमें से ये माइनस करा, 2a-2, 2 कॉमन, a-1। फिर ये माइनस करा, दिस इज a-1 एंड 0, एंड दिस इज कॉपीड एज इट इज। फैक्टराइज कर लेना, और फिर रो 1 और रो 2 से a-1 कॉमन, तो यहां बचेगा a+1। ये 2 आ गया, and expand this along third column। बस क्योंकि जैसे 0 0 1 दिख गया, you can now directly expand this। ठीक है, तो एक्सपैंड करिए एंड सिंप्लीफाई। एक स्टेप ही बचा है, वो भी a-1 दे देगा। so that was a very simple question indeed। check out this question। नोट केयरफुली द आंसर। आंसर में अगर आप ध्यान से देखें, इफ आई टेक नेगेटिव कॉमन, ये इसके इक्वल है आंसर। और ये एक फार्मूला है 9th क्लास का, याद है इसमें क्या हो जाता है ये फार्मूला? a+b+c होल क्यूब। नो, a+b+c इंटू a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca। रिकॉल, ये 9th का फॉर्मूला है जो अब यहां आपको लॉजिकली सोचना है। सो लुकिंग एट द आंसर जो मुझे लाना है, और मैंने देखा कि इसमें एक फैक्टर इन्वॉल्व है, एटलीस्ट a+b+c। तो आई हैव अ क्लियर कट हिंट। क्या करें? एनीवन? यस, ठीक है भानु, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग मोर स्टूडेंट्स। आप ऑडियो ऑन करके भी बता सकते हैं। सो
ये सिंपल ऑब्जर्वेशन रहा, R1 गोज टू R1 प्लस R2 प्लस R3 कर दिया इन LHS. सो वन कैन इजीली नोट ये 2 टाइम्स हो जाएगा, 2 टाइम्स A प्लस बी प्लस सी. आप जब इन्हें ऐड करेंगे, चेक देम आउट, 0 और A प्लस बी प्लस सी, रो 2 and रो 3 as it is. Then of course A plus B plus C is common from row 1. So 2, 0, 1. After this step, we generally do not left with much option of applying any other property. अगर आप चाहो तो चलो मैं ये कहूँ कि मैं R2 goes to R2 माइनस R3 लगा देता हूँ, या यहाँ 1 है, इसको डबल करके इसमें से माइनस कर देता हूँ ताकि एक और 0 मिल जाए. दैट यू कैन ऑलवेज डू. बट अदरवाइज यू इवन, क्योंकि मेन प्रॉपर्टी आपने सोच के लगा दिया है, अब अगर आप इसको एक्सपैंड भी कर देते हैं, दैट इज एब्सोल्युटली ओके. सो एक्सपैंड कर दिया, कैसे होगा? 2 टाइम्स ये रो और कॉलम को हाइड करा, क्या आ जाएगा? C इंटू बी माइनस सी माइनस बी इंटू सी माइनस ए, और फिर प्लस 1 इंटू, ये तो 0 वाला ही आ गया कॉलम, और फिर यहाँ 1 वाला, तो वो आएगा C प्लस ए इंटू सी माइनस ए माइनस ए प्लस बी इंटू बी माइनस सी. आई एम श्योर यू नो इट कि मैंने क्या सोचा है, किस तरह से 2/2 डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड करते हैं, वही यूज हुआ है. Now it is purely your algebraic calculation. ये A प्लस बी प्लस सी, 2-3 स्टेप यहाँ इन्वॉल्व होंगे नेचुरली, एंड आफ्टर दैट क्या होगा? आपके पास यहाँ क्या आ जाएगा? ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर. ये गारंटेड इसके इक्वल आएगा. हाउ आई एम श्योर? क्योंकि इसके बाद मैं यहां से माइनस कॉमन निकाल दूंगा, सो दैट इट कैन बी रिटन लाइक दिस, और दिस इज नथिंग बट द फॉर्मूला फॉर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc. बस माइनस की वजह से ये 3abc. सो ये रिवर्स थिंकिंग पहले से ही मैंने रखी हुई थी, सोचा हुआ था बिगिनिंग में ही, बस उसी को एक्सप्रेस कर दिया है इन द लास्ट स्टेप. नाउ I hope it is clear. At least in chat box, can I get Y or N? Okay, ठीक है. Okay. Check out this question. I'm waiting.
Yes, R1 goes to R1 plus R2. Again, the factors, they are giving me the hint. मैंने सिर्फ इन दोनों को ऐड करके देखा, ए प्लस बी आ गया। इन दोनों को ऐड करा, ए प्लस बी। इन दोनों को ऐड करा, बस नेगेटिव कॉमन एंड ए प्लस बी। अगर आर वन गोज टू आर वन प्लस आर टू एप्लीकेबल है, पॉसिबली आर टू गोज टू आर टू प्लस आर थ्री इज ऑल्सो वर्केबल। चेक कर लेते हैं। मैं पहले तो यही लगा रहा हूं, आर वन गोज टू आर वन प्लस आर टू, ए प्लस बी माइनस ऑफ ए प्लस बी। और अब अगर मैं अप्लाई करता हूं ये आर टू गोज टू आर टू प्लस आर थ्री, इन दोनों को ऐड करा, माइनस ऑफ बी प्लस सी, बी प्लस सी, बी प्लस सी। वन कैन इजिली चेक दैट आउट। और ये एज इट इज कॉपी कर दिया, रो थ्री। बस अब ऊपर रो वन से कॉमन और रो टू से कॉमन। ये प्लीज लिखना जरूर यहाँ पर, ये स्टेटमेंट के मार्क्स होते हैं। सो टेकिंग ए प्लस बी एंड बी प्लस सी कॉमन फ्रॉम आर वन एंड आर टू रिस्पेक्टिवली। तो वन वन माइनस वन, माइनस वन वन वन, और ये आ गया। नेक्स्ट क्या करना चाहिए? Check this out. C1 goes to C1 plus C2. C2 goes to C2 plus C3. Benefit. C1 goes to C1 plus C2. 2, 0, और ये आ जाएगा। फिर यहाँ 0, 2 और P प्लस सी। कहीं कुछ लिखने में गलती हुई है शायद, क्योंकि कॉमन फैक्टर्स एक कुछ मुझे लग रहा है आना चाहिए था। एनीवे, चेक कर लेते हैं। C1 goes to C1 plus C3। यस, उससे और इजी आ रहा है क्योंकि दो जीरोस मिल रहे हैं एंड ए प्लस सी भी एज अ फैक्टर आ रहा है। यस, ठीक है। सो एक ऑप्शन ये है, बिल्कुल इससे भी सही आ रहा है, बट एज सजेस्टेड यू कुड डू डायरेक्टली C1 goes to C1 plus C3। तो चेक करो इससे क्या हो जाएगा। एक स्टेप मेरा कम हो जाएगा एक्सपेंशन में, और मुझे यहां क्या मिल गया? 0, 0 एंड डायरेक्टली ए प्लस सी। बाकी मैं कॉपी कर दूंगा यहां। तो अब हमने दो ऑब्जर्वेशन करे, एक तो दो जीरो मिल गए और ए प्लस सी भी आ गया एज अ फैक्टर। तो अब आप ए प्लस सी कॉमन कर दो, या यहीं पे अब आप इसे एक्सपैंड कर दीजिए एंड यू विल हैव योर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है समृद्धि, ये बेटर वे रहा था। चेक दिस आउट। थोड़ा सा ट्रिकी है, सोचिए कैसे होगा।
एनी सजेशन कैसे करना चाहिए? लुक एट द आंसर. आई कैन हैव बी स्क्वायर माइनस ए सी, ये एज अ फैक्टर है मेरे आंसर में. तो बस यही मेरे लिए एक्चुअल में हिंट है मेन. बी स्क्वायर माइनस ए सी, इसे बी से मल्टीप्लाई कर दूं मैं और इसे ए से कर दूं. ये बी से और इसे ए से मल्टीप्लाई कर दिया एंड सब्ट्रैक्ट कर देंगे. क्या मतलब? रो वन गोज टू बी टाइम्स रो वन एंड रो टू गोज टू ए टाइम्स रो टू. बट याद रखिए, अगर आप सेम रो के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो बैलेंस करने के लिए डिवाइड भी करना पड़ेगा. तो अगर b से मल्टीप्लाई तो 1/b से डिवाइड. ये बैलेंस कर दिया. बेनिफिट देखो इससे क्या होगा, यहां ए बी आ गया, बी स्क्वायर आ गया और b से मल्टीप्लाई करा है तो b से मल्टीप्लाई दिखा दो यहां पर. नेक्स्ट मैंने क्या करा, रो टू में इस पूरे को a से मल्टीप्लाई कर दो. तो ए बी ए सी और ए बी एक्स प्लस ए सी वाई. And then there is no change in the third row. This is one of the possible method. हम कॉलम वाइज भी ऐसा कुछ ऑब्जर्व बिल्कुल कर सकते थे. अब मैं क्या करूंगा, रो वन गोज टू रो वन माइनस रो टू. चेक दिस आउट, क्या आ जाएगा, 0 बी स्क्वायर माइनस ए सी और इन्हें जब माइनस करा, इसमें से ये कर रहा हूं ना, ए बी एक्स और ए बी एक्स कैंसल, बी स्क्वायर वाई माइनस ए सी वाई. तो कॉमन क्या आ गया, वाई और ब्रैकेट में अगेन बी स्क्वायर माइनस ए सी. तो बी स्क्वायर माइनस ए सी पे ही सिर्फ मेरा फोकस रहा था, हाउ आई कैन इंट्रोड्यूस दैट, और बाकी स्टेप्स फिर ऑटोमेटिकली क्लियर होने स्टार्ट हो जाते हैं. यहां तक सबसे इंपॉर्टेंट जो स्टेप्स थे, चीजें थी, हो चुकी हैं. नेक्स्ट ऑफ कोर्स बी स्क्वायर माइनस ए सी, ये आप कॉमन निकाल देंगे. बी स्क्वायर माइनस ए सी इज कॉमन एंड नेक्स्ट आ जाएगा यहाँ 0 1 वाई, ए बी ए सी पॉसिबली कोई और शॉर्टकट भी होगा, क्योंकि इसके बाद भी थोड़ी सी मुझे भी कैलकुलेशंस यहां दिख रही हैं. क्योंकि अगर कॉमन मैंने निकाल दिया तो अगर मैं इसे एक्सपैंड भी करता हूं यहां, सो दैट इज लिटिल बिट टाइम कंज्यूमिंग. तो इसीलिए you also try it out or I will share the some another alternative solution wherein शायद कॉलम से मैं इसे आराम से कर पाऊं. तो वो अब आप सोच के देखना. I will also let you know some easier method to solve this question. But the basic idea वो यही है कि b square minus ac has to be generated in my LHS. So if we take A
common from second row and B common from the third row. So denominator में A B जो है वो कट हो जाएगा, right? नहीं, ए तो कॉमन आ गया, और बी रो कहाँ से थ्री कॉमन? रो थ्री से। रो 3 से बी कॉमन कहाँ आ रहा है? हाँ, सिवाय और ए हाँ, एक्स। नहीं, दैट इज नॉट कॉमन, ए तो है कॉमन। हाँ बिल्कुल ठीक है, ए कॉमन निकाल देंगे, फिर थोड़ा सा वैल्यू स्मॉलर हो रही हैं, देन ऑफ कोर्स वी कैन एक्सपैंड। तो गलत कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, थोड़ा सा बस कैलकुलेटिव हो गया है। तो वी कैन अगेन थिंक अबाउट सम ऑल्टरनेटिव दैट आई विल शेयर विद यू। चेक आउट दिस क्वेश्चन। Using properties of determinants, find the value of f of 2x minus f of x. One of the possibility, f of 2x का मतलब क्या हुआ? फंक्शन ये fx दिया हुआ है एज अ डिटर्मिनेंट, आप x की जगह लिख दो 2x। जहां जहां x दिखाई दिया, यू रिप्लेस दिस बाय 2x, तो यहाँ 2ax हो जाएगा। और इधर क्या हो जाएगा एक्चुअली, अगर आप x की जगह रखते हैं 2x, 4ax² माइनस 1a, और x की जगह 2x रखा है, रेस्ट एज इट इज। तो बस फिर अब हम इसे सॉल्व करेंगे, प्रॉपर्टीज वगैरह से सोचेंगे, फिर ये माइनस। But remember and understand, this is actually going to be a very lengthy and tedious process. Other alternative way, अब हम इसका सोचते हैं कि क्या किया जा सकता है। We will simply evaluate f of x। इसे डायरेक्ट सॉल्व करना शुरू कर दो एज अ प्रॉपर्टीज को देखते हुए। तो लुक केयरफुली, एक तो मुझे f of x में से कॉमन दिखा ए फ्रॉम कॉलम 1, ये पहले लिख लेते हैं। तो ए कॉमन 1x² माइनस 1a ax, 0 - 1a, ये कॉमन हमें दिख रहा था। और अब फिर अगर आप ध्यान से देखें, C1 goes to C1 plus C2, 0 x प्लस ए, और इन दोनों को ऐड करा, x कॉमन, और फिर ब्रैकेट में आ जाएगा x प्लस ए। आई होप दिस इज क्लियर। फिर ऑब्वियसली x प्लस ए कॉमन आ जाएगा यहां से, एंड दिस इज नोट केयरफुली। अब अगर मैं इसमें ऑपरेशन लगा दूं, C1 गोज टू C1 प्लस C3, क्या बेनिफिट हुआ? C1 प्लस C3, 0 0 एंड x प्लस ए, ये एज इट इज। ऑब्वियसली यहां से x प्लस ए कॉमन, एंड 0 0 1 -1a ax, 0 -1a, इसे अब आप एक्सपैंड कर देंगे along this, तो ये आ रहा है सिंपली
अगर आप ध्यान से देखें 1 के इक्वल, तो a इंटू एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर, दैट इज मैंने एफ एक्स क्या निकाल दिया है इसके इक्वल, इससे व्हाट इज एफ ऑफ 2x। अब यहां पर बस आप x की जगह 2x रख दीजिए और फाइनली आप इन दोनों वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यू विल गेट योर रिक्वायर्ड आंसर। ओके, I hope the idea is clear. Chaliye, with that, I'll end the class now. Do practice all these questions. Chaliye, please leave the meeting now.